Good morning and a warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you live coverage of the Khelo India. 7, 8 and 9 for the boys event is going to be held shortly from now. Starting with Punjab University, it will start with the 12 count Surya Namaskar, then the 5 compulsory asanas and then the 4 optional asanas. The total score is 100, and if you look at the scorecard right now, it's Savitribai Phule University from Maharashtra which is leading the points table with 399.5 points, and then of course you have RTM Nagpur University which is at 399.27 points. Just 0.5 points is the difference between Savitribai Phule and RTM Nagpur. And right now we have, in a short while from now, you will have Punjab University which has been leading the overall points table at the Khelo India University Games, who will be showing their performance, their routine to the 5 judges, and there are 3 judges. There were 5 judges earlier. The 3 judges and the chief judge as well, who would assess them for 100 marks. 10 marks for the Surya Namaskar 12 counts, and of course let's not forget the 5 compulsory asanas of 50 marks and the 4 optional asanas for 40 marks as well. In the background we have the Om chanting going on right now by Honorable Dr. Arya, who is the chief guest here at the Yogasana event at Varanasi. We are at the Benares Hindu University Indoor Hall IIT campus, where live coverage of the Yogasana event has been shown. We have shown day 1, day 2, and today is day 3. Day 1, in the girls event, we saw the victorious RTM Nagpur University girls winning the gold medal with 407 points. And today is the final 3 teams in the boys event who will be taking part to determine who's won the gold, who's won the silver, and finally who has won the bronze medal as well. The objective for Doordarshan Sports here is to show you live coverage of Yogasana, which has now become a sporting event, and it's not just about bodily postures and bodily control that you're doing for recreational purposes. It is now a competitive sporting event which is finding its way into the national games that is to be held in Goa, that found its way into the Khelo India University Youth Games in 2021, and hopefully it will find its way into the Asian Games and maybe even the Olympic Games as well, as they organize a point system better, as more teams participate, as more athletes become more competitive in the sport of Yogasana. In a short while from now, we will show you Punjab University boys, the team number 7, who will be competing in the boys traditional Yogasana across 3 segments for 100 marks. And of course we have live commentary from our expert commentators Kulwinder Singh Kang and Prashant Singer, who will be showing you what the nuances are, what are the different asanas, all the bodily postures, how is the marking system being assessed, how is it that one team is ahead of the others. And one can draw inspiration from gymnastics, your artistic, rhythmic and traditional gymnastics as well. We can hear the loud applause of all our spectators right now as they're enjoying Yogasana, and we've had rhythmic gymnastics shown in the earlier events. We have adopted that in traditional Yogasana as well, just to entertain the spectators. And it's time now, in a short while from now, for us to show you live coverage. Let's now go over to our commentators and of course our production team to show you live coverage of what's going on here at the indoor hall of the Benares Hindu University, the Khelo India University Games here in Varanasi, live on Doordarshan Sports. और ये सितारे अब इस मंच पर हैं। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के खिलाड़ी इस समय मंच पर हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए। जैसा कि अर्जुन ने बताया, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, वाराणसी के BHU स्थित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर IIT में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तहत योगासन स्पर्धा आयोजित की जा रही है। आज स्पर्धा का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला परफॉर्मेंस देव, अंकित, ईश्वर, सोनल, प्रभाकर और विनय, ये 6 कंटेंडर, मैं यकीन दिलाता हूं कि ये खिलाड़ी आपका मन मोह लेंगे। लेकिन साथ साथ मन मोहने की आवश्यकता इन सभी जजेस की भी के प्रति भी रहेगी, इन सभी खिलाड़ियों की। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के ये खिलाड़ी, और ये हैं आरती पाल, टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं और अद्भुत खिलाड़ी भी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आते हैं और मध्य प्रदेश की पहली योगा में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर।
शुरुआती औपचारिकता जो रहा करती है प्रतियोगिता की, वो पूरी की जा रही है। आप सभी डीडी स्पोर्ट्स के दर्शक भली भांति जानते हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस प्रतियोगिता से लगातार जुड़े हुए हैं। ये है चीफ जज, आज जवाबदारी बदली है, यश पाराशर के स्थान पर नए चीफ जज। नमस्कार से, सूर्य नमस्कार से प्रारंभ हुआ करता है प्रेजेंटेशन। 100 से ज्यादा स्टूडेंट, 17 विश्वविद्यालय, अब आखिरी 3 विश्वविद्यालयों का परफॉर्मेंस। ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा इस सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस में। योग, जिसके बारे में कहा जाता है हमारा अपना है, हमें हमारी आत्मा से संपर्क कराता है। आत्मा और शरीर का दरअसल एक स्वस्थ और सुंदर अनुरूप है। और अब पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र, ये रहा वो सिग्नल जिसके जरिए योगासन की राष्ट्रीय चैंपियनशिप, टीम चैंपियनशिप का प्रारंभ हुआ करता है। लीजिए, सूर्य नमस्कार से प्रारंभ हो रहा है और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे साथी कुलविंदर सिंह जी कंग को। धन्यवाद प्रशांत सेंगर। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन का पहला सत्र है और आज एक ही सत्र होगा। और ये सूर्य नमस्कार की शुरुआत की गई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के द्वारा पुरुषों की प्रतियोगिता में। और ये देखिए, पाद हस्तासन करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ भगवान भास्कर को याद करते हैं। 12 आसन होते हैं इसमें। ये अश्व संचालन आसन आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इन 12 आसनों में सबसे जो बड़ी बात होती है वो होती है कि 1.5 से 2 मिनट के बीच में आपने इनको पूरा करना है। ये देखिए, पर्वतासन, ये अष्टांग नमस्कार आसन, उसके बाद ये भुजंग आसन। बाएं से देव, अंकित, ईश्वर, सोनल सिंह, प्रभाकर और विनय कुमार। उसके बाद एक बार फिर से ये पर्वतासन करेंगे, यानी कि धीरे धीरे वही आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में जो शरीर में चपलता लाते हैं। देखिए मास्टर शॉट से किस तरीके से अश्व संचालन आसन, पूरी तरह से पाद हस्तासन, उसके बाद होगा हस्तोत्थानासन, फिर नमस्कार आसन। यानी कि जिस मुद्रा से शुरू किया उसी मुद्रा में वापस लौट के आएंगे। 10 अंक होते हैं, 1.5 से 2 मिनट का समय मिलता है। सूर्य नमस्कार के 10 अंक, जिसमें आपकी स्थिरता देखी जाती है, आपके श्वास देखे जाते हैं। और जो श्वास होते हैं, अगर आप प्राणों को अंदर खींचते हैं तो उनको प्राण कहते हैं, पूरक कहते हैं। और बाहर की तरफ उसको अपान कहते हैं, जिसको रेचक भी कहते हैं। तो तालियों के गड़गड़ाहट के बीच पहला सूर्य नमस्कार समाप्त किया गया। इस समय पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों के द्वारा। और अब 5 अनिवार्य आसन शुरू किए जाएंगे। आज 3 विश्वविद्यालय हैं, पंजाब विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ये देखिए एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में खूबसूरत तरीके से पूरे संतुलित छरहरे बदन सभी योगासन एथलीट्स के, और सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करते हुए एक क्रमबद्ध तरीके से, एक तारतम्य के साथ, एक आपसी तालमेल के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया गया यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों के द्वारा। हालांकि पंजाब विश्वविद्यालय की लड़कियां इस कंपटीशन में 4थे स्थान पर रहीं। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने। दूसरा स्थान मिला था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को और तीसरा स्थान मिला था रांची विश्वविद्यालय को। गुरु जम्बेश्वर के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय के बाद गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, और उसके बाद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के छात्र परफॉर्म करेंगे। और अब 5 अनिवार्य आसनों के लिए सबसे पहले
पश्चिमोत्तानासन, उसके लिए तैयारी करते हुए उन्हें दाहिनी तरफ मुड़ने को कहा गया, क्योंकि जिस तरफ जजेस बैठते हैं उनको साइड एंगल से दिखना चाहिए। 2 पंक्तियां बना दी गई हैं, ये देखिए। और ये समय शुरू हो चुका है। नारायण डे का जो कि टाइम कीपर हैं और उद्घोषक हैं, उन्होंने टाइम शुरू की, अनाउंसमेंट की। पश्चिमोत्तानासन, जिसमें आगे की ओर मुड़ना होता है, दोनों टांगे ललाट पर जुड़ी हों, पांव का अंगूठा ऊपर की ओर सीधा, पेट, छाती, ललाट टांगों से सटा हुआ, पीठ सीधी। ये देखिए किस तरीके से दोनों हाथों से पांवों के अंगूठे को पकड़ रखा है और अपना सिर दोनों टांगों के बीच में, पेट, छाती सब टांगों पर, घुटने बिल्कुल सीधे और खींच के रखना पड़ता है। 60 सेकंड का समय मिलता है, 10 अंक मिलेंगे इसके, और इसके लिए निरंतर अभ्यास किया जाता है। लगभग 3-3, 4-4 मिनट अनिवार्य आसन, एक आसन का अभ्यास करने के बाद यहाँ पर वो 1 मिनट के लिए परफॉर्म करते हैं, तो परिपक्वता आ जाती है। बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सिर सीधा सामने की तरफ, आंखें नीचे होनी चाहिए। ये देखिए, और जिस तरीके से रिलैक्स करने को कहा गया, सिर उठा, धीरे धीरे उन्होंने अपने अंगूठों को छोड़ा, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच किया और उठकर वापस अब आने की तैयारी में अभी बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इस आकार में लाएंगे कि वो अगले आसन के लिए तैयार हो। आपको 60 सेकंड में पसीना भी छूट जाता है, तो आपके पास एक रुमाल होता है जिससे आप चाहें तो उसको साफ कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों की। आप एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरीके से पश्चिमोत्तानासन को परफॉर्म किया गया। रेफरेंस बुक में पश्चिमोत्तानासन अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया है। दूसरा जो कंपलसरी आसन है वो अब शुरू होने वाला है, और वो दूसरा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन की पोजीशन लेते हुए, और उसके बाद नारायण डे का जब समय शुरू करेंगे उसके बाद ये शुरू होगा सर्वांगासन। एक और कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ते हुए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के ये छात्र, योगा खिलाड़ी, इसे सर्वांगासन कहा जाता है। ये शरीर के सब अंगों को एक्टिव किया करता है, इसलिए इसका नाम सर्वांगासन पड़ा है। और इसकी खूबसूरती आप देखिए, कंधों के जरिए पूरे शरीर को साधना है, 60 सेकंड होल्ड करना है। चूंकि आप प्रतियोगिता में हैं, आप स्पर्धा में हैं, इसलिए प्रतियोगिता के नियम का भी आपको पालन करना है। हथेली से आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। लेकिन इन सब में संतुलन के साथ सहजता बहुत आवश्यक है। चेहरा तनाव रहित तो वो सोने पे सुहागा कहलाएगा, मुस्कुराहट उसे और खूबसूरत बनाएगी। कुल मिलाकर सर्वांगासन आसनों की एक सबसे खूबसूरत शैली कहलाएगी, जो शरीर के सभी अंगों को एक्टिव करती है। 60 सेकंड का समय खत्म हुआ, तो शुरुआत हुई पश्चिमोत्तानासन से, उसके बाद बारी आई सर्वांगासन की, और अब तीसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए किस तरीके से शुरुआत की गई सर्वांगासन आसन की। और अब पूर्ण धनुरासन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण धनुरासन, जो आपको धनुष की आकृति जैसा प्रतीत होगा, लेकिन कंपलसरी आसन, और कंपलसरी आसनों में तीसरा कंपलसरी आसन रहा करता है पूर्ण धनुरासन। तो पूर्ण धनुरासन की तरफ बढ़ते हैं ये छात्र। एक और थोड़ा सा मुश्किल आसन, लेकिन महत्वपूर्ण। तो अब पंजाब विश्वविद्यालय के सभी प्रतिभागी आपके स्क्रीन के ऊपर,
देव, अंकित, ईश्वर, सोनल सिंह, प्रभाकर और विनय कुमार ये इस समय पूर्ण धनुरासन की ओर तैयारी करते हुए, आपको उस आसन में आकर स्थिर होना, उसके बाद समय शुरू होता है। उसके लिए बहुत एक तकनीकी दृष्टिकोण से आपके अपने शरीर को मोड़ना होता है। ये देखिए किस तरीके से पहले एक बाजू को पकड़ा, फिर दूसरे बाजू को पकड़ा। पूर्ण धनुर आसन बनाने की पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ा जाता। बहुत मुश्किल कार्य है। आपके सिर के पीछे दोनों टांगे होती हैं। सभी जब स्थिर हो जाते हैं और टाइम शुरू हुआ नारायण डेका की अनाउंसमेंट के साथ ही, अब 60 सेकंड तक अपने आप को रोक के रखना। इसमें आप सांस भी लेते हैं तो ये पूरक होता है, यानी कि अंदर होता है प्राण और बाहर की तरफ अपान। इसके अलावा सांस रोकने को कहते हैं बाह्य कुंभक, और अंदर अगर बाहर आप सांस रोकते हैं तो बाह्य कुंभक, अंदर सांस रोकते हैं तो अंततः कुंभक। तो ये पूर्ण धनुरासन। पीठ पूरी तरह से मुड़ी हुई होती है अर्धचंद्राकार में। चेहरे के हाव भाव देखिए, चेहरे पे बिल्कुल भी तनाव नहीं होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। सामने की तरफ आप देखें और सारे शरीर का भार पेट के ऊपर आ जाता है। शरीर कितना छरहरा हो जाता है योगासन करने वालों के लिए। जो लोग देख रहे हैं, जो कभी योगा नहीं करते, वो भी शायद इसको देखकर योगा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि योगा आपके मन को, आपके चित्त को शांत करता है, शरीर को सुडौल बनाता है, छरहरा बनाता है, आपके शरीर में गति आती है, आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, सुबह से शाम तक आप एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद रिलैक्स होने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे वो रिलैक्स होंगे, पीछे की तरफ गए, हाथ को हटाया और वापस अपनी पोजीशन पर, और थोड़ा सा अब इसको कहते हैं बाह्य कुंभक, यानी कि सांस रोका रखा है। बहुत मुश्किल है योग आसन में। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से इस पोजीशन पर आते हैं। पूर्ण धनुरासन के लिए किस तरीके से अपने दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़ा, टांगे पीछे से, पेट के ऊपर बल, आगे के दोनों बाजू ऊपर, पीछे के पैरों को पीछे से लाकर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगला आसन है कर्ण पीड़ासन। तो कुल मिलाकर कंपलसरी आसन के 3 चरण संपन्न हुए। अब चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के ये योगा खिलाड़ी। चौथा जो आसन रहेगा वो कर्ण पीडासन रहेगा। कर्ण पीडासन अभी तक जितने आसन हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन यही तो जीवन है और यही योग विधा है। आप जितनी कठिन परिस्थितियों को आत्मसात करेंगे उतने बेहतर योगा के छात्र, योगा के खिलाड़ी बनेंगे। कर्ण पीडासन थोड़ा सा मुश्किलों भरा, लेकिन सर्वांगसन जिस तरीके से आप लगाते हैं वैसा ही स्टार्ट मिला करता है। सर्वांगसन में आप पैरों को बिल्कुल सीधा रखा करते हैं, यहाँ पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है बिल्कुल विपरीत दिशा में, और उसके बाद सिर के बिल्कुल आजू बाजू घुटनों को रखना है, कानों के आजू बाजू रखा जाता है। यहाँ पर हाथ विपरीत दिशा में रखने होंगे। कर्ण पीडासन थोड़ा सा मुश्किलों भरा, लेकिन इन मुश्किलों को साधा करते हैं ये खिलाड़ी और उनकी कोशिशों को दरअसल आकलित किया करते हैं, जज किया करते हैं, जो थोड़ी देर पहले दिखाए गए। 60 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है और 60 सेकंड तक होल्ड करना ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती रहा करती है। आपको अपने योग को बनाए रखना है, अपनी अवस्था को बनाए रखना है, विचलन नहीं होना चाहिए, संतुलन नहीं गंवाना है, और यह आसान नहीं होता। योग की यही मुद्रा जो 60 सेकंड तक आप बनाए रखेंगे वो आपको अंक दिलाएगी। समय समाप्त हुआ, रिलैक्स होने का संकेत मिल चुका है और फाइनली अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे ये सभी छात्र जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तहत योगासन स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। रिप्ले में आप एक बार फिर देख सकते हैं कैसे स्टार्ट लिया, स्मूथ स्टार्ट जो सबसे ज्यादा आवश्यक हुआ करता है, न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। आप जितने स्मूथ, जितने सहज रहेंगे
उतना बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। योग में ये सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण रहा करता है, क्योंकि आप योग को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस योग को जो दरअसल हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी पहचान है। और अब पांचवा और अंतिम अनिवार्य आसन गरुड़ासन। सबसे मुश्किल आसन इसको कहा जाएगा। पांचों इंद्रियों का समत्व होता है इसके अंतर्गत। एक टांग पर संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। आम आदमी तो दोनों टांगों पर भी थोड़ी देर खड़ा रहे तो थक जाता है। एक टांग के ऊपर 60 सेकंड तक आप अपने शरीर का संतुलन बनाएंगे। पोजीशन लेने के लिए आपको कहा गया है, आप तैयार होइए। और ये देखिए किस तरीके से ये अभी संतुलन बन रहा है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बाईं टांग को मोड़ते हैं, दाईं टांग को मोड़ते हैं। ये देखिए बीच में उन्होंने अपनी बाईं टांग को मोड़ा है, बाकी दाईं टांग को मोड़ रहे हैं। समय शुरू हो चुका है। चेहरे की सौम्यता देखिए प्रतिभागी की। संतुलन देखिए, दोनों हाथ गरुड़ की मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में चेहरे के सामने। एक टांग के ऊपर संतुलन, अपने पैर को दूसरी टांग को पीछे से सहारा पिंडली के ऊपर पैर से। यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है, टांग कांपने लग जाती है। और अगर आप संतुलन खोते हैं, हिलते हैं, तो डिफिकल्टी जो जज हैं 5 वो इस चीज को नोट करते हैं सामने की तरफ और नंबर कटते हैं। ये देखिए ये जो पैर लगा प्रतिभागी नंबर 2 का, और ये है अंकित, ये उन्होंने पैर नीचे लगाया, इसके अंक कटेंगे। ये यहां पर दिक्कत आई, वो बैठ गए हैं, लेकिन बाकी प्रतिभागी अभी भी रिलैक्स होने को कहा गया है। तो यहां पर थोड़ा सा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों का जो प्रदर्शन है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये पांचवा और अंतिम गरुड़ासन था अनिवार्य आसनों में। इसमें पीठ भी सीधी रखनी पड़ती है, आप पीठ इधर उधर नहीं मोड़ सकते। और उसके बाद आपको ये देखिए एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से पहले आप तैयारी करते हैं, अपनी टांग को, एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं, दूसरी टांग को, पैर को ले जाकर पीछे पिंडली पर लगाया जाता है, संतुलन बनाते हैं। उसके बाद समय शुरू होने के बाद आपको बिल्कुल स्थिर होना होता है। और ये देखिए किस तरीके से क्रॉस करते हुए दोनों बाजुओं को, दोनों हाथ क्रॉस हो जाते हैं, उसके बाद नमस्कार की मुद्रा में आते हैं। तो ये पांचों अनिवार्य आसन समाप्त हुए। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्र देव, अंकित, ईश्वर, सोनल सिंह, प्रभाकर और विनय कुमार आपकी स्क्रीन पर बाएं से दाएं। तो कुल मिलाकर पांचों कंपलसरी आसन खत्म हुए। सूर्य नमस्कार से प्रारंभ हुआ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के इन छात्रों का सफर। खेलो इंडिया ये जजों का समूह है, खिलाड़ियों की खूबी और उनकी खूबसूरती को आंका करता है। फाइनली नंबर और कहीं कोई डिफिकल्टी होती है आपस में देखिए सलाह करते हैं, पूछते हैं कि इस प्रतिभागी के इसमें दिक्कत थी। सलाह करने के बाद 5 जो डिफिकल्टी जज होते हैं वो नंबर देते हैं, जिनके सबसे कम सबसे ज्यादा वो हटा दिए जाते हैं। 3 जजों के अंक जो होते हैं उनको जोड़कर उसका औसत निकाला जाता है। तो तमाम सारे इम्तिहानों से गुजरने के बाद अब ऑप्शनल आसन की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआती 2 जो एथलीट रहेंगे, 2 जो खिलाड़ी रहेंगे, वो देव और अंकित रहेंगे। गौर कीजिएगा देव और अंकित का 5वें आसन में यानी गरुड़ आसन में परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर रहा था। अब आप ऑप्शनल की तरफ जा रहे हैं, जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। देव को निभाना है पूर्ण चक्रासन, जबकि अंकित पूर्ण शलभासन की तरफ बढ़ेंगे। ये आसान नहीं होगा। यहाँ इंडिविजुअल आपको अपने टीम को देना है और सर्वश्रेष्ठ देना है। जब आप कंपलसरी आसन की तरफ जाते हैं तो वहाँ सिंक्रोनाइजेशन, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस सामने आया करता है। यहाँ आप व्यक्तिगत अपना प्रदर्शन किया करते हैं। यह है सुनील शर्मा, चीफ जज हैं। यह है देव। पूर्ण चक्रासन आप ले रहे हैं। पूर्ण चक्रासन, हथेली समूची जमीन से स्पर्श होनी चाहिए। दूसरी तरफ पूर्ण शलभासन ये ले रहे हैं अंकित। अंकित का परफॉर्मेंस गरुड़ आसन में बहुत कमजोर रहा था।
तो यहाँ जवाबदारी उनकी बढ़ गई है, लेकिन अच्छा तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया है। 60 सेकंड का समय इनको निभाना होगा, 30 सेकंड का समय माफ कीजिएगा, चूंकि आप वैकल्पिक आसन की तरफ बढ़ गए हैं तो यहाँ पर केवल 30 सेकंड आपके पास रहेंगे। लेकिन केवल शब्द सिर्फ केवल कहने लायक है, आसन लगाने के बाद ये केवल नहीं बचता, ये 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लंबे प्रतीत होते हैं। यह है देव पूर्ण चक्रासन लगाए हुए हैं, जबकि अंकित निभा रहे हैं पूर्ण शलभासन को। एक फ्रेम में दो खिलाड़ी एक ही शिद्दत के साथ, एक ही जज्बे के साथ अपनी टीम के लिए यानी पंजाब विश्वविद्यालय के लिए बड़े मंच पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो देव और अंकित का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, सीधी नजरों से दिखाई देता है उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन अंकों का हिसाब किताब जजेस लगाएंगे। रिप्ले में देखिए किस तरीके से देव गए पूर्ण चक्रासन की तरफ, अंकित गए पूर्ण शलभासन की तरफ। यह है शलभासन और उसके बाद देव जाएंगे, यह है पूर्ण शलभासन। अंकित ने इस आसन को निभाया, उसके बाद पूर्ण चक्रासन जिसे देव ने निभाया। और अब ईश्वर और सोनल सिंह, ईश्वर को ओमकार आसन निभाना है, जबकि टिटिभासन अपनाएंगे सोनल सिंह। ओमकार और टिटिभासन, यह है टिटिभासन सोनल सिंह। 30 सेकंड होल्ड करना है, समय स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ ओमकार। हर आसन अपने आप में अपनी विशिष्ट आकृति को प्रकट कराया करता है। ओमकार आसन निभाने वाले ईश्वर अपने समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, जबकि टिटिभासन सोनल सिंह की तरफ से कमजोर रहा, उन्होंने समय से पहले अपनी अवस्था को छोड़ा है। तो ये नंबर्स कम होंगे, जाहिर सी बात है, देखना होगा, क्योंकि आप बड़ी टीमों को चैलेंज कर रहे हैं। अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए तो पुरुषों की टीम चैंपियनशिप में 399.5 नंबर्स के साथ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय सबसे आगे चल रहा है। रिप्ले देख रहे हैं आप पिछले आसनों का। दूसरे स्थान पर है राष्ट्र संत तुकोदोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का दल, यानी आरटीएम विश्वविद्यालय नागपुर, जो 399.27 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। अब हम दूसरे प्रतिभागियों की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के अब प्रभाकर और विनय आए हैं आसन के लिए। टिटिभासन प्रभाकर के जरिए और विनय बहुत ही आकर्षक आसन कहलाता है, वृश्चिक आसन। देखिए किस तरीके से, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जब सोनल ने लगाया था। ये टिटिभासन प्रभाकर के द्वारा। आसान नहीं होता, शरीर को इस तरीके से आप पद्मासन की मुद्रा से थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे तो आपको टिटिभासन हासिल होगा, लेकिन पूरे शरीर को इस तरीके से हवा में रखना। दूसरी तरफ वृश्चिक आसन विनय कुमार द्वारा, विपरीत दिशा में शरीर को फोल्ड करना, पैरों का सिर पर स्पर्श कराना और ये बनाए रखना, सिर्फ कोहनियों के सहारे, सिर्फ हाथों के अगले हिस्से के सहारे पूरे शरीर को संभालना। मुश्किलों को साधने वाला काम किया है प्रभाकर और विनय कुमार ने। यहाँ तमाम तालियां मिली हैं इन दोनों ही खिलाड़ियों को। तो इस तरीके से पहला राउंड कंपलसरी आसन का खत्म होता है। एक बार फिर रिप्ले में आप देख सकते हैं वृश्चिक आसन विनय कुमार के द्वारा, यह है टिटिभासन। मैं बता रहा था पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर आरटीएम विश्वविद्यालय नागपुर, तीसरे स्थान पर शिवाजी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र की टीम है। तो ये टॉप 3 में ये टीमें हैं, इनको पीछे छोड़ना है तो आपको बेहतर करना होगा। दूसरा राउंड प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले देव और अंकित आए हैं क्रम संख्या 37 और 38 पर। देव कर रहे हैं पूर्ण चक्रासन और पूर्ण शलभासन कर रहे हैं अंकित। यह है
पोजीशन लेते हुए। ये देखिए किस तरीके से देव कर रहे हैं इस समय हनुमान आसन, और ये है वृश्चिक आसन अंकित परफॉर्म कर रहे हैं। वृश्चिक जिसको कि बिच्छू भी कहा जाता है, और किस तरीके से अंकित ने उसको परफॉर्म किया। ये देखिए दोनों पांव आपके सिर के ऊपर और केवल कोहनी और हथेलियों के बल पर आप, और हनुमान आसन करते हुए देव जिन्होंने शानदार तरीके से हनुमान आसन किया, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर की तरफ, दोनों टांगे 180 डिग्री तक विपरीत दिशा में मुड़ी हुई होती है। तो ये दूसरे परफॉर्मेंस समाप्त हुई। दूसरे चक्र के पहले दो प्रतिभागी, और उसके बाद अब देव और अंकित के बाद ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से वृश्चिक आसन और हनुमान आसन करते हुए देव और अंकित। बहुत मुश्किल होता है। ये वृश्चिक आसन आपकी स्क्रीन पर अंकित ने परफॉर्म किया था। और अब नए दो प्रतिभागी ईश्वर और सोनल सिंह, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। ईश्वर करेंगे हनुमान आसन, ईश्वर करेंगे हनुमान आसन, और ओंकार आसन करेंगे सोनल सिंह। ये हनुमान आसन, ईश्वर उसकी पोजीशन लेते हुए 30 सेकंड का समय मिलता है। और ये सबसे मुश्किल ओंकार आसन है। इसमें आपके शरीर को दोनों हथेलियों के बल पर आपने अपने आपका संतुलन बनाना है। ये करते हुए ओमकार आसन सोनल सिंह, और ये हनुमान आसन करते हुए ईश्वर सिंह। और ये देखिए 180 डिग्री तक टांगे मुड़ी होती है हनुमान आसन में। यहाँ पर जो ओंकार आसन है उसमें आप ये देखिए कि आपका जो एक पांव है वो आपके सिर के पीछे की तरफ कंधों के ऊपर टांग मोड़कर लगानी होती है। ये देखिए नमस्कार के मुद्रा में हनुमान आसन में ईश्वर, और ये देखिए चेहरे पर भाव देखिए, सौम्यता देखिए, पीछे की तरफ लेके गए, एक टांग को मोड़कर आप अपनी काख के नीचे ले जाएंगे, और 30 सेकंड का समय संपन्न हुआ। थकावट हो जाती है, लेकिन बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया ईश्वर और सोनल सिंह ने। और जजेज जो कि 5 डिफिकल्टी जज हैं वो अंक देते हैं। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से हनुमान आसन की पोजीशन लेते हुए ईश्वर। अभी तक पुरुषों के वर्ग में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय 399.50 अंक के साथ पहले स्थान पर, ये वृश्चिक आसन करते हुए सोनल सिंह। दूसरे स्थान पर हैं राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय 399.27, और तीसरे स्थान पर शिवाजी विश्वविद्यालय 394.14। यानी कि अभी तक तीनों ही विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से हैं, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और ये दूसरे वैकल्पिक आसनों का आखिरी जोड़ी प्रभाकर और विनय कुमार। प्रभाकर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय सेतु सर्वांगासन, और पूर्ण चक्रासन किया जा रहा है विनय कुमार के साथ। ये देखिए पूर्ण चक्रासन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दोनों पैर मजबूती के साथ जमीन पर। और ये देखिए सेतुबंद सर्वांगासन, आपने अपनी कोहनी और कंधों के बल पर अपने दोनों हाथों से अपनी जो पीठ है उसको सहारा देना होता है। बीच में बिल्कुल सेतु की तरह अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना होता है। आपकी ठुड्डी आपकी छाती के साथ, सीने के साथ लगी होती है, सिर आसमान की तरफ होती है, चेहरे पर सौम्यता रखनी है। और ये देखिए किस तरीके से पूर्ण चक्र आसन, जिसको पूर्ण चक्र बंद आसन भी कहा जाता है। और यहाँ पर 30 सेकंड का समय समाप्त हुआ। प्रभाकर और विनय कुमार दोनों परफॉर्म करते हुए, विनय कुमार आपकी स्क्रीन पर थे, सेतु सर्वांगासन प्रभाकर ने किया। और इस तरीके से ये दूसरा जो वैकल्पिक आसन था वो संपन्न हुआ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों के द्वारा। और दूसरे वैकल्पिक आसन का ये देखिए किस तरीके से एक्शन रिप्ले में पता लग रहा है कि आप उस पोजीशन पर जाते हैं। ये पोजीशन थी इस वक्त सेतुबंद आसन के लिए, सेतुबंद सर्वांग आसन। और ये देखिए पूर्ण चक्रासन। और अब वैकल्पिक आसनों का जो तीसरा चक्र शुरू होने जा रहा है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की तरफ से। तो 2 राउंड जिस तरीके से निभाए गए हैं, जहां गुंजाइश रही होगी उसको और बेहतर करना है, उस गुंजाइश को खत्म करना है।
अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि आपके पास चुनौती कहीं ज़्यादा बेहतरीन योग खिलाड़ियों की है। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने कल अद्भुत काम किया, आरटीएम विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ा दरअसल, और ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो देव और अंकित पहुंचे हैं। सेतुबंद सर्वांगसन ये अपनाया है अंकित ने। अंकित थोड़ा सा, जब टीम परफॉर्मेंस चल रहा था वहां मुश्किलें थी अंकित के हिस्से में। ये वृश्चिकासन देव के द्वारा, जब आप कहीं थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं या थोड़ा मुश्किलों में रहा करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाया करती है, और संभवतः वो आपको मजबूत भी बनाया करती है। उसी मजबूती के साथ बाद के आसनों में प्रदर्शन किया है देव और अंकित दोनों ने ही। ये है अंकित, सेतुबंद सर्वांगसन उन्होंने लगाया, 30 सेकंड का समय पूरा उन्होंने इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ वृश्चिक आसन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे देव, और यहां कहा जा सकता है कि इन दोनों ने ही खूबसूरती के साथ अपने आसनों का प्रदर्शन किया। उस खूबसूरती को एक बार फिर आप देख सकते हैं। वृश्चिक आसन और सेतुबंद सर्वांगसन, दो खिलाड़ियों द्वारा दो अलग अलग आसन, एक ही समय में एक ही टीम के लिए एक ही लक्ष्य को लेकर, विपक्षियों से, जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे बेहतर करना है। और अब ईश्वर और सोनल सिंह मंच पर। ईश्वर पूर्ण शलभासन की तरफ बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर बाएं तरफ, दाएं तरफ आप देखेंगे तो हनुमान आसन की तरफ जाएंगे। सोनल सिंह हनुमान आसन, और ये पूर्ण शलभासन, ईश्वर नाम है इनका, जो ये आसन लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमान आसन। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा किस तरीके से इन खिलाड़ियों ने अपने सामने आए लक्ष्यों को हासिल किया है, किस तरीके से उन्होंने योगासन को निभाया है। अलग अलग योगासन, यह है हनुमान आसन जिसे निभा रहे हैं सोनल सिंह। दूसरी तरफ उनके साथी पूर्ण शलभासन के साथ ईश्वर। 30 सेकंड पूरे हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के तहत योगासन स्पर्धा आयोजित की जा रही है वाराणसी के बीएचयू स्थित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर आईआईटी में। यह है सुनील शर्मा, चीफ जज की भूमिका निभा रहे हैं। यह भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा करती है। और अब प्रभाकर और विनय आएंगे मंच पर। प्रभाकर को निभाना है हनुमान आसन, जबकि सेतुबंद, मैं माफी चाहूंगा, प्रभाकर निभाएंगे पद्म बकासन, जबकि हनुमान आसन निभाएंगे विनय कुमार। पद्म बकासन, दोनों हाथों से पूरे शरीर को हवा में रखना है। यह हनुमान आसन विनय कुमार के द्वारा। हर आसन कुछ ना कुछ कहता है, हर आसन की अपनी एक परंपरा और प्रकृति रहा करती है। पद्मासन को आप और बेहतर स्वरूप प्रदान करेंगे और मुश्किलें प्रदान करेंगे तो आप पद्म बकासन की तरफ बढ़ेंगे। पद्मासन में आप जमीन पर रहा करते हैं, हाथ घुटनों पर रहा करते हैं। यहाँ हाथ जमीन पर हैं और पूरा शरीर हवा में है। 30 सेकंड का समय पूरा हुआ। प्रभाकर और विनय कुमार ने बढ़िया तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। पद्म बकासन अपनाया प्रभाकर ने और विनय कुमार ने। रिप्ले में आप देख रहे हैं
पद्म बकासन की अवस्था प्रभाकर के द्वारा, जबकि उनके साथी विनय कुमार हनुमान आसन की मुद्रा में रहे। योग स्पर्धा, खेलो इंडिया का मंच, हम कितने गौरवान्वित हैं कि इस मंच पर अलग अलग विश्वविद्यालयों से इस स्तर पर खिलाड़ी पहुंचे हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो टॉप की टीमें रही हैं, उन टीमों में से सिलेक्शन हुआ है खेलो इंडिया के मंच पर पात्रता हासिल करने के लिए। 8 टीमें क्वालिफाई करके आई महिला वर्ग में, 9 टीमों ने क्वालिफाई किया पुरुष वर्ग में। और अब आखिरी राउंड, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के छात्रों के लिए अपना सब कुछ लाना होगा मंच पर, सबसे बेहतर करना होगा। आखिरी अवसर। पहले 2 प्रतिभागी तो आ चुके हैं मंच पर, यानी कि आगे बढ़ चुके हैं, और ये हैं देव और अंकित। ये दिखाएंगे पूर्ण शलभासन करेंगे, देव और अंकित करेंगे हनुमान आसन। ये देखिए किस तरीके से ये पूर्ण शलभासन करते हुए। देव आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत मुश्किल है ये, इसको टिड्डा या टिड्डी भी कहा जाता है आम देसी ग्रामीण भाषा में। पूर्ण शलभासन देखिए किस तरीके से अपने शरीर को आप मोड़ कर उस पोजीशन पर जाते हैं। सिर आपका ठीक नीचे होता है, दोनों बाजू खींची, और ये हनुमान आसन करते हुए ये है अंकित। दोनों टांगे 180 डिग्री तक विपरीत दिशा में होती हैं। बहुत 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 मुश्किल होता है ये। दोनों हाथ स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ होते हैं, दोनों बाजुओं के अंदर सिर होता है। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर पूर्ण शलभासन, सबसे मुश्किल। पूरे शरीर को आप रबड़ की तरह मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ पीछे स्ट्रेच करते हैं। ये हनुमान आसन में देखिए, दोनों बाजू और कंधों के बीच में आपका सिर और टांगे 180 डिग्री तक मुड़ी हुई विपरीत दिशा में ऊपर आप नमस्कार कर रहे हैं। 30 सेकंड का समय मिलता है, और यहाँ पर अब रिलैक्स होने के लिए कह दिया गया है। देव को रिलैक्स होने के लिए भी धीरे धीरे उसी मुद्रा में आना पड़ता है, और अंकित को भी, जो कि हनुमान आसन कर रहे थे, उनको भी रिलैक्स होने के लिए कहा गया है। और जो 5 डिफिकल्टी जज होते हैं वो इसमें नंबर देंगे। आज के जो जज हैं वो हैं, काफ़ी बड़ा पैनल होता है। टाइम जज है विकास घोष। डिफिकल्टी जज की बात अगर मैं करूं, संतोष कुमारी झारखंड से, नम्रता वर्मा गुजरात से, दिशा टोंक तमिलनाडु से। डिफिकल्टी जज हैं लीलाधर शर्मा उत्तर प्रदेश से, और वरुण कुशवाहा मध्य प्रदेश से। आज चीफ जज नए हैं, कल यश प्राशर थे, आज हैं सुनील शर्मा। ये देखिए एक्शन रिप्ले में। और अगर टाइम जज की बात करें, पहले मैंने बोला कि विकास घोष टाइम जज हैं। इसके अलावा टाइम जज की अगर बात करें तो दूसरे टाइम जज हैं चंद्रकांत बारिक उड़ीसा से, और तीसरी सुलोचना बाराजकर गोवा से। ये टाइम जज हैं। और स्टेज मैनेजर उद्घोषक है नारायण डेका। ये अब दूसरी टीम। आखिरी वैकल्पिक आसनों में ईश्वर और सोनल। ईश्वर करेंगे सेतुबंद सर्वांगासन, और पद्म बकासन करेंगे इस समय सोनल सिंह। ये सेतुबंद सर्वांगासन होता हुआ आपके सामने, वही मुश्किल जो पहले अभी किया गया था, थोड़ी देर पहले किया गया था। ये सेतुबंद पहले पूर्ण शलभासन था, ये सेतुबंद सर्वांगासन है, ईश्वर कर रहे हैं। और ये देखिए पद्म बकासन। पद्म बकासन में बिल्कुल दोनों हथेलियों पर अपने पूरे शरीर को भार डालना होता है, और अपने चेस्ट के सामने पालथी लगानी होती है। दोनों टांगों को मोड़कर आप अपने चेस्ट के साथ लगाएंगे, सिर सामने सीधा। और ये देखिए, ये है सेतुबंद सर्वांगासन। इसमें भी काफी आपने मेहनत करते हैं सेतुबंद सर्वांगासन में। ये देखिए जिस तरीके से पद्म बकासन सोनल सिंह कर रहे हैं, दोनों बाजुओं के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर उसका भार होता है। अब रिलैक्स करने को कह दिया गया 30 सेकंड का। अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ पद्म बकासन का, सोनल सिंह का 30 सेकंड का। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बिल्कुल चौकड़ी लगा रखी थी, पालथी मार रखी थी, लेकिन हवा में। घरों में हम बैठते हैं जमीन पर पालथी मार के बैठते हैं, लेकिन यहाँ पालथी वो थी ऊपर आसमान की तरफ। और अब आखिरी 2 प्रतिभागी। और ये देखिए एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले में किस तरीके से इस पोजीशन में जाना होता है। ये सेतुबंद सर्वांगासन, ये आपकी स्क्रीन पर परफॉर्म किया ईश्वर ने। ईश्वर की कृपा रही इनके ऊपर कि बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा, कंपन नहीं है। और ये रहा पद्म बकासन सोनल सिंह ने। ये देखिए पालथी लगाई हुई हवा में। और ये आखिरी 2 प्रतिभागी हैं, वो हैं प्रभाकर और विनय कुमार। हनुमान आसन और सेतुबंद सर्वांगासन।
सेतुबंध सर्वांगासन अभी देखा था आपने। विनय कुमार करेंगे, प्रभाकर करेंगे हनुमान आसन, और उसके बाद विनय कुमार करेंगे सेतुबंध सर्वांगासन। ये देखिए हनुमान आसन करते हुए प्रभाकर, ये चौथा और आखिरी वैकल्पिक आसन उसकी जोड़ी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये सेतुबंध सर्वांगासन परफॉर्म करते हुए विनय कुमार पूरी तरह से अपने शरीर को देखिए मोड़ा हुआ, कंधों के ऊपर और कोहनियों के ऊपर उनका पूरा भार था, पीठ को उन्होंने अपना सहारा दे रखा था। और ये करते हुए प्रभाकर हनुमान आसन में 180 डिग्री तक मुड़ जाते हैं आप। सीधी करके दोनों टांगे आम आदमी नहीं बैठ सकता, यहाँ पर आपको 180 डिग्री तक अपनी टांगों को मोड़ना होता है। सेतुबंध सर्वांगासन और हनुमानासन दोनों बहुत मुश्किल आसन है। 30 सेकंड का समय, 42 का रिलैक्स करने को कह दिया गया है सेतुबंध सर्वांगासन को, और क्रम संख्या 41 को भी रिलैक्स होने के लिए कहा गया है। और इस तरीके से ये अनिवार्य आसनों की जो मुद्रा थी, पंजाब विश्वविद्यालय का आज का प्रदर्शन संपन्न हुआ। ये देखिए प्रभाकर किस तरीके से हनुमान आसन की पोजीशन पर जाते हुए 30 सेकंड तक आपको यहां रहना होता है। तालियों से अभिनंदन किया गया सभी प्रतिभागियों का। और ये प्रतिभागी थे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के देव, अंकित, ईश्वर, सोनल सिंह, प्रभाकर और विनय कुमार।